motion. Am I clear with this? Yes. Write down heading circular motion. The motion of a body. Everyone, please start with the heading circular motion. Motion chapter में ही है. Circular motion में लिखो the motion of a body moving around a fixed point the motion of a body moving around a fixed point in circular path. The motion of a body moving around a fixed point in circular path. The motion of a body moving around a fixed point in a circular path. For example, motion of moon around earth. The motion of moon around earth. The motion of planets around the sun. The motion of moon around earth. The motion of planets around the sun. Next point, the motion of satellite around the earth. The motion of satellite around the earth. Now write down next heading, uniform circular motion. Uniform circular motion. कहते हैं uniform circular motion क्या है? The motion of a body the motion of a body having uniform or constant speed. Having uniform or constant speed. The motion of a body having uniform or constant speed. अब जरा एक क्वेश्चन सुनना. It is important from NTSC point of view. We are preparing for NTSC side by side. क्वेश्चन जब NTSC की बात होती है, it is mandatory for everyone. बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स तो करवाते ही करवाते हैं बच्चों को participate and अच्छे स्कूल्स भी. And it is up to you. You can opt for science. क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो you should go for this competition also. कहते हैं जब circular motion आएगा, I am making a diagram. Look on your screen. This is a circular motion. Movement of a body around a fixed point. कहते हैं इधर भी डिस्टेंस सेम है, इधर भी डिस्टेंस सेम है, इधर भी डिस्टेंस सेम है, इधर भी डिस्टेंस, बिकॉज इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल. द डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम. Am I clear with everyone? Now coming to displacement. Displacement in this case will be what? It is the
What is displacement? Displacement को क्या बोलते हैं बेटे? Shortest path. Is it? The shortest path will be the diameter, or it is equals to the circumference of circle. What is the circumference of circle? Yes, anyone? Pi r. 2 pi r. 2 pi r. So displacement will be equal to circumference, and which is equal to 2 pi r. So what is velocity? Velocity का formula होता है displacement upon time. Displacement मैंने बता दी, circumference 2 pi r, time divided by t. This is the velocity of a body in a circular path. This is how we calculate. Velocity of a body moving in a circular path. Velocity is equals to 2 pi r by t, where d is displacement, circumference of circle. So this is how we calculate. Please write down the formula. V equals to 2 pi r by t. And you know why it is 2 pi r? Because it is equal to the circumference. ये तो आ गई आपकी velocity. Because velocity is vector or scalar quantity. V says vector, V says velocity. So is it a vector or मैंने आपको बता ही दिया, it is a. Yes, please speak out बच्चे. It is a vector or scalar? Vector. Vector quantity. And Jashan, vector quantity has both. Yes, tell me. It has both. Motion. No, it has both magnitude and direction. अब याद आया किसी को? सबको याद होना चाहिए. मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी इज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अब मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर दिया, स्क्रीन पे दिख रहा है सर्कमफ्रेंस से, इसकी वैल्यू आ जाएगी. मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू. बट हाउ व्हेन विल वी कैलकुलेट दी डायरेक्शन? लुक ऑन योर स्क्रीन, द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट. यू नो व्हाट इज टेंजेंट? व्हाट इज टेंजेंट? परपेंडिकुलर. यस, सबको पता है? यस और नो? बच्चे, आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म टेंजेंट? Yes, Dashan says yes. How many of you say yes? Tangent is perpendicular. किसी भी point पे, and you can see from the diagram, all the directions are different. हर point पे, the tangent will represent the direction, and it is always different. How many of you are clear with this concept? Please raise your hand. अगर हमें find करनी है magnitude, तो उसके लिए formula V equals to 2 pi r by t. और अगर हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन तो मुझे टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन विल बी डिफरेंट. सिर्फ जशन को समझ आया? व्हाट अबाउट आरुषि, अंकिता एंड साक्षी? नो नो. ओके, मुझे तो फॉर्म आप चलो, मैं अभी फिर एनटीएससी वाला पार्ट नहीं आपको इससे क्लियर करती हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक कॉन्सेप्ट. डोंट गो डीप इनटू इट, डोंट वरी. जस्ट जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, गो विद दैट पार्ट. इट इज गिवन कि एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ में जा रही है उसकी अगर वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, then you have to calculate the velocity by this formula, which is displacement upon time. And displacement is circumference of circle, which is 2 pi r by t. And velocity is always vector. So vector quantity is one which has both magnitude and direction. और अगर मुझसे डायरेक्शन पूछेंगे तो इट विल ऑलवेज बी टेंजेंट. इसको लाइन को आप रेडियस बनाओगे, रेडियस में जिस पॉइंट की भी मुझे वैल्यू चाहिए, रेडियस बना के उसका टेंजेंट परपेंडिकुलर. इसका टेंजेंट बनाना है, ये बन गया परपेंडिकुलर. इसका टेंजेंट बनाना है, ये बन गया परपेंडिकुलर. इसका टेंजेंट बनाना है, ये बन गया परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर, द टेंजेंट ड्रॉन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट.
Am I clear now, everyone? Yes. Explain one more time. I can really hear you properly. Okay, no worries. I'll repeat once again. बच्चे सिंपल एक फॉर्मूला मैंने आपको बोला कि बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. अब अगर आप सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल जशन ने क्या किया, एक थ्रेड लिया और एक थ्रेड से उसने एक पेबल को टाई कर दिया, एक धागे से एक पत्थर को टाई किया, एंड ही इज रिवॉल्विंग इट इन सर्कुलर डायरेक्शन. घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है जशन, और ऑल ऑफ अ सडन दिस ब्रेक्स अप. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? यस जशन, अगर आप धागा घुमा रहे हो थ्रेड के साथ जो टाइट पेबल है, व्हाट विल हैपन टू दैट पेबल? Jashan or anyone apart from Jashan, anyone, just raise your hand and tell me what will happen. It will break. It will break, but what will happen to the pebble? पत्थर को क्या होगा? It will go in any random direction. Will it move in circular direction, circular wise, or will it go straight, or will it show some मतलब पूरा सीधा जाके and then it will go down? What will happen exactly? It will go straight and then it will fall down. Okay, straight जाएगा और okay, according to Arushi, it will go straight. This is suppose यहाँ से पत्थर अगर break हुआ ये thread, it will go straight and then it will break, है ना? Is it? Yes, ma'am. And what about others? Anyone saying this कि वो गोल गोल घूमता रहेगा और फिर गिरेगा? Anyone? I think वो goal. I think it goes straight. पर वो straight जाएगा. Okay, so now I have just now explained this concept. Go with the physics क्योंकि हमें लगता है but it will follow tangent path because अभी अभी मैंने बताया कि उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर. तो वो अगर टूटेगा तो वो सीधा जाएगा, ऐसे स्ट्रेट जाएगा इन दैट डायरेक्शन. अगर यहाँ से टूटा है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस यहाँ टूटा है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा. इट विल गो स्ट्रेट इन दैट डायरेक्शन एंड देन इट विल फॉल इन अ पैराबोलिक पाथ. सीधा नहीं, ऐसे ऐसा नहीं होगा सीधा गया टूट गया नीचे गिर गया. इट विल फॉलो दिस पैराबोलिक पाथ. क्लियर एवरीवन? बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट. यस, क्लियर एवरीवन? आई थिंक ये इस एग्जांपल से सबको क्लियर हो चुका है. तो कंक्लूजन लिखो. यस, गॉट इट. कंक्लूजन लिखो. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी is always along the direction of motion of body is always along tangent to a point. The direction of motion of a body is always along tangent to a point on circular path. Open your NCERT for page 113. 113. अच्छा, open your book for page 113. उसमें last नहीं 113 उसमें last question देखो क्या है. An artificial satellite. Yes, question number No, 10. actually, I don't have my science here. कोई बात नहीं, लिखो क्वेश्चन. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनके पास है they can open page 113.
An artificial satellite moving in a circular orbit of radius 42250 kilometer. An artificial satellite moving in a circular orbit of radius 42250. Ankita, I'm repeating. An artificial satellite moving in a circular orbit of radius 42250. Calculate speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. Obviously ये circular motion की बात हो रही है और मैंने what is the formula साक्षी अभी क्या लिखवाया था v का फॉर्मूला बोलो साक्षी अभी पिछली स्लाइड में आपने v का फॉर्मूला क्या लिखा है टेल मी look on your screen and tell me the answer bete v equals to yes d upon t या फिर 2 pi r upon t पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 आर हमें दिया हुआ है स्क्रीन पे लिखा है मैंने येलो से 42250 आवर्स लगे हैं 24 आवर्स इसको सॉल्व करना है और अभी ये कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हैं तो आई एम गिविंग यू सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर 1110648 किलोमीटर पर आवर 11065 तो ये दिस इज द वेलोसिटी How many of you are clear with this? Yes, tell me. With this question. Simple आपने formula apply किया और आपके पास आंसर आ गया. Okay? Okay. बच्चे जशन को हो रहा है बाकी बच्चे क्लियर नहीं है बेटे Okay. So ऐसे ही क्वेश्चन अगर आएगा सर्कुलर पाथ पे तो सीधा आपने क्या करना है अप्लाई करना है फॉर्मूला एंड देन यू टेल द आंसर ओके दिस इज हाउ वी कैलकुलेट राइट डाउन वन अब चलो फिर न्यूमेरिकल्स ही करते हैं बिकॉज अभी तो चैप्टर नहीं है आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर अब देखो सिंपल जब भी सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो आपने क्या करना है सिंपल उसका ऑब्वियसली उसमें रेडियस दिया होगा ठीक है टाइम दिया होगा टाइम की वैल्यू गिवन होगी रेडियस की वैल्यू गिवन होगी तो आपको अप्लाई करना है 2 pi r upon t r will be your radius जनरली ये बड़ा है r इसलिए लेते हैं कि वैल्यू इज वेरी लार्ज सर्कल छोटा होता है तो स्मॉल r होता है लेकिन अब बड़ा होता है तो क्योंकि रेडियस अब आपने ऑब्जेक्ट का या किसी एरिया का ले रहे हो तो इट इज लार्ज दैट इज व्हाई कैपिटल R इज यूज्ड and ultimately you have and there is no need to change kilometer or r into meter or second ओके इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती तो क्या सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया सर्कुलर मोशन पे अब सपोज दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी हैव गॉट so I'm going to tell you a trick how to solve these big calculations because gravitation जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो कैलकुलेशंस बहुत बड़ी बड़ी आने वाली हैं and I'm going to tell you a trick please listen to me carefully
Suppose this is a big calculation. Can you try this on your own and tell me the answer? Can you all try? Yes or no? Or you want me to start with the trick? Yes, speak out. Anyone? Arushi, Ankita, Jashan, Sakshi? Yes? आज सब चुप हो? क्या बात? Yes, you can try. Okay, please try. Try this up. But try this question. No worries, Ankita. You can just message. Ankita has written message that she will try. What about others? Others also, please try. Go with approximation. जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 22 है. I'm writing 3. 7 3s are 21. ये फिर 3 से cancel होगा. 8s are 24. Now I'm going with 8. 8 6 are 42. 8 3s are 24. So इससे अगर हम approximation लेंगे तो 2 6 0 12. Look on your screen. Within fraction of seconds, you can get the answer. आपका आंसर आया था 11,000. What was the answer? 11,065. Yes. तो मेरे पास आंसर आया 12,060 किलोमीटर पर आवर. So I've done this with the approximation. Please look on your screen. I'll tell you. अब इतनी बड़ी calculations हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ 3 मार्कर and you don't want to leave any mark. तो आप लोग क्या करोगे? अप्रोक्सीमेशन में जाओगे. लुक ऑन योर स्क्रीन. अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अगर इसको किया 7 3s are 21, 7 1s are 7, 3.1 आया. मैंने 3.1 की जगह लिख लिया 3. अगर 3 लिखो या 3.1 लिखो, वन एंड द सेम थिंग. यस, अगर 3.6 होता तो लिखना पड़ता 3.1, 3.2, 3.3 मींस 3. तो मैंने 3 लिख लिया. 3 के टेबल में मुझे पता है 3 8s are 24, 8 3s are 24 या 3 8s are 24. 8 के टेबल में मुझे पता है 8 6 are 42, फिर 0 आएगा. 8 3s are 24, फिर 8 1s are 8, 6031 अंदाजन आ गया. इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर आ गया मेरे पास 12,062 किलोमीटर पर आवर. So in fraction of seconds, I've got my answer. How many of you are clear with this? Go with the approximation if you have large calculations, because अगर आप करने लगोगे, you will waste your 5 minutes in doing this question only. At least I have got the answer, okay? Got my point, bete? This is how we do easy calculations or we do quick calculations. I'm going to start with another question. आपने फिर से मेरी एक ट्रिक सुननी है because I don't want anyone to lose their mark in numerical. तो इसमें अभी क्वेश्चन में देखो 113 पेज पे, 112 and 113. क्योंकि अभी हमने सर्कुलर मोशन कर लिया है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, अगर मेरी आवाज ऑडिबल है प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि आई डोंट वांट कि किसी का भी ये मिस हो क्वेश्चन. If my voice is audible, be quick in raising your hand. Okay, Arushi, Ankita. Okay. Darshan, okay. Sakshi, raise your hand, bete. Be quick. Sakshi, are you there in the class, bete? Okay, got it. Shabash. पहला क्वेश्चन है, an athlete, you know what is athlete? Athlete एक runner को बोला गया. Athlete completes one round on a circular track. घूम रहा है गोल गोल, सर्कुलर ट्रैक है, ऑफ डायमीटर 200 meters इन 40 seconds. 40 सेकेंड में पूरा एक ट्रैक कंप्लीट कर लेता है. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 minutes 20 seconds? क्वेश्चन अगर हम सोच के चलें तो बिल्कुल इजी है. 40 सेकेंड में 200 मीटर कर रहा है. मुझे 22 minutes 20 सेकेंड है, मिनट्स को मैंने चेंज कर लिया.
2 मिनट्स मतलब 2 into 60 120 सेकेंड प्लस ये 20 140 सेकेंड। मुझे टाइम पता चल गया। अब देखते हैं 140 सेकेंड में से एक राउंड में उसने लिया 40 सेकेंड, दूसरे राउंड में लिया 40 सेकेंड, तीसरे राउंड में लिया 40 सेकेंड, तो 4 3 हो गया 12। तो ये 3 बार 140 में से 120 माइनस करो तो 3 राउंड उसके कंप्लीट होते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन? कहते हैं जब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट से शुरू करो अगर उसी में आओ तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हमने क्लास में पढ़ा था। इफ आई एम मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यस, 0. 0। शाबाश, इट्स अ चॉकलेट क्वेश्चन, वेरी गुड। जहां से मैंने शुरू किया वहीं पे अगर मैं वापस आ रही हूँ, then in that case displacement is 0। डिस्टेंस क्या होगा? अगेन अ चॉकलेट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, what will be the distance covered? Circumstance of the circle. Yes, circumference of the circle, शाबाश। लेकिन वेलोसिटी में क्या यूज होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? Displacement. यस यस, अपने आप आंसर्स बता रहे हो, अगर आप क्लास में अटेंटिव हो तो अपने आप आंसर्स बताओगे। अब मेरी बात फिर से ट्रिकीली सुनो कि हमें दिया हुआ है 40 सेकंड में वो बच्चा जो है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अंकिता, अंकिता जो है 40 सेकंड्स में एक पूरा 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक पूरा करती है, रनिंग करती है। तो अगर आपने देखा कि सर्कुलर ट्रैक अंकिता ने 40 सेकंड्स में पूरा किया, ठीक है, मुझे पता चल गया 200 मीटर ट्रैक है अंकिता के पास, 40 सेकंड से एक बार। मेरे पास टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट्स 20 सेकंड है, मिनट्स को मैंने चेंज किया तो आ गए 120, क्योंकि 2 into 60 is 120, प्लस 20 सेकंड और थे, मैंने 140 सेकंड। तो अंकिता के पास 140 सेकंड्स थे, जिनमें से 40 सेकंड में एक राउंड, 40 सेकंड में दूसरा राउंड, 40 सेकंड में तीसरा राउंड। तो अंकिता ने 3 सर्कल्स पार कर लिए हैं। और अगला राउंड क्योंकि 120 हो चुके हैं, 140 माइनस 20 120 is 20, तो अगला वो आधा ही पार कर पाई। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि अंकिता ने 3 सर्कल्स पार किए और डिस्प्लेसमेंट उनकी तीनों की थी 0, और अगला जो 3.5 सर्कल उसने कंप्लीट किए 2 मिनट 40 से 2 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके, जशन को आ गया, बाकियों को किसी को नहीं समझ आया? यस, मैंने तो बहुत इजी वे में बताया, किसको नहीं समझ आया बेटे बताओ? नहीं समझ आया ऋषि? बेटे ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली समझो कि अगर 40 सेकेंड में हम एक पूरा कर रहे हैं तो 140 में कितने पूरा करेंगे? एक राउंड 40 सर्कल, दूसरा राउंड 40 40 40 80 हो गए, तीसरा राउंड 40 120 हो गए, बचे हुए रह गए 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में तो आधा ही कर पाएगा, अगर 40 में पूरा था तो 20 सेकेंड में आधा हुआ। तो अंकिता ने 3 राउंड तो कंप्लीट कर दिए, 4 3 12, और नेक्स्ट 20 सेकेंड में वो आधा ही कर पाई, और डिस्प्लेसमेंट 3 केस में 0 हो गई, फोर्थ में आई 2 पाई आर। तो फोर्थ में अंकिता के पास था v इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी, और ये जो 200 दिया हुआ है तो 2r है, 2r की वैल्यू तो दी हुई है, कितनी दी हुई है, क्या लिखा है मैंने? 200।
क्यों 200 है, पता चल रहा है क्यों? क्योंकि डबल ही है रेडियस का, डायमीटर है ना, डायमीटर गिवन है। 2r क्या होता है? डायमीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे, पाई की वैल्यू 22/7, 2r की वैल्यू गिवन है 200। दिस इज योर आंसर। टेल मी द आंसर। कितने बच्चों को क्लियर हो गया कि 2 मिनट को 20 सेकंड को पहले मैंने टाइम में चेंज किया है, टाइम चेंज किया, मेरे पास आ गया ओके 120 सेकंड। तो अंकिता ने 140 सेकंड, 120 में 3 राउंड किए, उनकी वैल्यू थी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कल इज 0। 40 में एक राउंड किया, 40 में एक राउंड किया, 40 में एक राउंड किया, 3 सर्कल से उसकी 0 हुए। अगला जो 20 वाला था उसकी वैल्यू चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस इज डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू 200 मीटर्स दी हुई है क्वेश्चन में। 2πr था, 2πr की जगह 2r की जगह मैंने लिख दिया 200, पाई की जगह लिख दी उसकी वैल्यू। टेल मी द आंसर नाउ, कैलकुलेट दिस। पाई इंटू 200, जल्दी से बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर। 100 meter approx. 100 600 meters, meter approx. how much? 600? Yes, ma'am. Yes, anyone? बच्चों बोलो, at least you should try. And yes, you are right, because again I told you, take this as 3.1 या 3 ले लो, 3 into 2 is 6, 600. She's right, 600 kilometer per hour. This is the answer. Sorry, in this case it is meter per second. बस अप्रॉक्स कर दिया मैंने। आरुषि ने बोला कि 7 3 is 21, 3 into 2 6, तो आंसर आ गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। ओके, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्टेंस होता तो टोटल लेते, फिर उसमें 140 सेकेंड्स भी मल्टीप्लाई करते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अब एंड में पूछा हुआ है कितने राउंड्स कंप्लीट किए उसने। अंकिता ने कितने राउंड्स कंप्लीट किए बताओ? 3 राउंड्स थे और अगला राउंड हाफ था, 3.5 राउंड। स्पीड लिख लो, ये है 600 अप्रॉक्स। तो आंसर एग्जैक्ट अगर चाहते हो तो 628 मीटर पर सेकेंड है। हाउ मेनी राउंड शी हैज कंप्लीटेड? इट इज 3.5 राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय एथलीट इज 3.5। जशन कैसे आए 3.5? जशन कैन यू टेल मी हाउ कम इट इज 3.5? हर राउंड कितने सेकंड में कंप्लीट किया उसने? मैम 40 सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको ये बात समझ आ गई कि एक राउंड में 40 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे राउंड में फिर 40 लगे, तीसरे राउंड में 40 लगे, 4 into 3 कितने होते हैं? 120 सेकंड मेरे ऐसे ही खर्च हो गए 140 में से, बचे हुए रह गए 140 माइनस 120 इज 20। तो 40 का पूरा राउंड था, 20 में सिर्फ आधा राउंड रह गया। डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन ऑल 3 केसेस। लास्ट की मैंने निकाल दी 2πr/t, और राउंड हो गए 3.5 राउंड, 3.5। लेकिन total displacement will be only given by this 200 meter. क्योंकि बाकी 3 राउंड्स की डिस्प्लेसमेंट थी 0, सिर्फ आधे राउंड की नहीं, और आधे राउंड में इसका डायमीटर, इसका सर्कमफ्रेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो लिख लो, the displacement will be diameter of circular track, which is 200. The displacement will be diameter of circular track, which is 200 meters.
Is everyone done? Yes. Yes, done everyone. Now I am moving to next part. Okay. Next question likho. A motor boat. Please write down next question. A motor boat. Question number 4 है ये. Motor boat starting from rest is moving in a straight line Ma'am, you're muted. Okay, am I audible now? Class? Yes, ma'am. Okay. Okay, a motorboat starting from rest has an acceleration. आपने लिख लिया सभी ने question? A motorboat starting from rest has an acceleration of 3 meter per second square for 8 seconds. Find the distance traveled. अभी भी कई बच्चों को ये बात नहीं समझ आई कि what is given. If a body starts from rest तो क्या zero होगा? U. Question में जो दिया था मैंने वही लिखा है. Motorboat starting from rest has acceleration of 3 meter per second square for 8 seconds. Calculate distance traveled. Distance होता है S. And you all know there are 3 equations of motion. V equals to U plus AT. S is equals to UT plus half AT square. V square minus U square equal to 2AS. So these are the 3 equations of motion. अब मुझे ऐसी कोई इक्वेशन ढूंढनी है. Look on your screen. जिसमें S भी हो, U भी हो, A भी हो, T भी हो. वो सिर्फ सेकंड है. V नहीं चाहिए मुझे. तो V सिर्फ इसी में नहीं है. तो मैंने सिंपल इक्वेशन को यूज किया. S equals to UT plus half AT square. Tell me the answer. Everyone apply the values and tell me the answer. Be quick. जल्दी से बच्चे. Let's see who is the winner today. Tell me the answer. Be quick. Yes, tell me the answer. Yes. 96 meters per Yes. second. Yes. Yes. Only meters, बेटे. Distance है. Only meters. U की वैल्यू मैंने ली 0. T मुझे पता था 8 है. साक्षी दिख रहा है बेटे? साक्षी आपने मिस किए थे. आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू. हाफ. A की वैल्यू है 3. T की वैल्यू है 8. 8 की जगह स्क्वायर लिखें. ये तो 0 हो गया. ये बन गया. सॉरी 2 हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8. तो आंसर आ गया 96 meters. Easy, very easy.
Who is saying very easy? Except me. Yes. किसको लग रहा है it's very easy? No one? Oh, no one is saying that it is easy. Ankita, yes. Okay, it's fine. Okay, not easy. कोई बात नहीं, कोई बात. Okay, I'm going with next question. कोई बात नहीं बच्चे, न्यूमेरिकल्स तो ना ऐसे ही हैं. It takes time. I don't want to hurry up also. अब अगला क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है. A trolley while going down, a trolley while going down has an acceleration of 2 centimeter per second square. A trolley while going down has an acceleration of 2 centimeter per second square. Find its velocity in 3 seconds, time दिया हुआ है, after the start. After the start मतलब u0. A trolley while going down in an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Find its velocity in 3 seconds after the start. अब मुझे पता है कि मुझे साक्षी लिखो बेटे, साक्षी. A trolley while going down. Okay, लिखो बेटे इसका. A trolley while going down has an acceleration of 2 centimeter per second square. Find velocity in 3 seconds after the start. अब मुझे ये पता है 3 इक्वेशंस में से मुझे ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें सारा हो v u a and t. तो ये तो पहली इक्वेशन है, v equals to u plus at. आंसर बताओ मुझे. v equals to u plus at. साक्षी आप बताओगे बेटे. प्लीज solve this and tell me the answer बेटे. I'm waiting for you. Yes, Sakshi, can you tell me bete, what is the answer? Ma'am, I'm sorry. Okay, take your time bete. Yes, Sakshi, what is the answer bete?
बेटे नहीं पता चला? v निकालना है, u 0 है. yes, 2 into 3. What is the answer, Sakshi? Ma'am, 6. Yes, 6 centimeters. Shabash. 6 centimeter per second. That is the answer. Easy. Next question लिखो. ठीक है, because simple सा था. Next question is, a bus decreases its speed. Bus decreases its speed. Bus decreases its speed from, जो पहली वैल्यू है ना, that is u. A bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. Find acceleration. Please change this into meter per second first. Arushi, we have started with new question. I think there is some network issue. Arushi, a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर. हाँ, जो पहले वैल्यू है वो u है, जो बाद में वैल्यू है वो v है. 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Find acceleration. You need to change 80 and 60 into meter per second by multiplying it with 80 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जशन, और 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18. Yes, 5/18. Please tell me the answer. Be quick. इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्विकली. $18 into 5/18 is, and 16 into 5/18 is. Is it 22 point? Very good. 22.2. Shabash. Meter per second. And this is, 16.6. yes, 16.6. Very good. तो एक वैल्यू आ गई 22.2 और दूसरी वैल्यू आई 16.6. और मेरे पास ये फॉर्मूला है एक्सेलेरेशन का, a equals to v minus u upon t. v की वैल्यू है 16.6, u की वैल्यू है 22.2, डिवाइड बाय 5. इसे सॉल्व करो. Ma'am, 1.1. 1.1. किसने दिया आंसर? Ma'am, Sakshi. साक्षी. शाबाश. 16.6 माइनस 22.2. क्या साक्षी प्लस में आया माइनस में आया आंसर? Ma'am, minus. Yes, very good. Minus 5.5 divided by 5 will be minus 1.1 meter per second square. शाबाश. तो अगर आपको रूल समझ आ गया कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में दिया था, आई हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकंड, और दूसरा रूल ये पता चल गया कि आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है फ्रॉम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू अनदर न्यूमेरिकल. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. अ ट्रेन स्टार्टिंग, अगर स्टार्ट हो रही है तो यू क्या हो जाएगा? यस, 0.
Yes, a train starting from railway station. लिखो इसमें a train starting from railway station and moving with uniform acceleration. A train starting from railway station and moving with uniform acceleration has a speed. Speed का मतलब क्या हो गया? V 40 किलोमीटर पर आवर. अब आपको पता है क्या करना है? किलोमीटर पर आवर है. In 10 minutes. मिनट्स को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? By multiplying it with. एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. और इसको आप अपने आप चेंज करोगे 40 इंटू 5/18 और आपको निकालना है इसके अंदर ए का फॉर्मूला है v minus u upon t. Solve this. Let's see who is a winner. I'm waiting for the answer. Anyone who is done with the question, just raise your hand or tell me the answer. अगर आपने 40 इंटू 5/18 का सॉल्व किया है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द आंसर? One point one. It is 11.1 रजे. 11.1. ओके, तो एक्सेलेरेशन में u 0 है, ये 11.1 माइनस 0 अपॉन टाइम दिया हुआ है मुझे 600 सेकेंड. अब करो इसे सॉल्व. व्हाट इज द आंसर? इसको फुली सॉल्व करो. अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स मुझे आंसर बताओ. व्हाट इज द आंसर बच्चे? Ma'am, it's 11.09. Okay, 11.09. Yes, you can say that. Okay, very good. Nee, what is the answer? A equals to 11.1 upon 600. Solve this, bete. Isko solve karo. Yes, you have got this right. Can you tell me the answer for A? 11.1 upon 600. 0.0185. Yes, it is 0.018. Very good. So this is the answer for acceleration. I hope आज आप लोगों को कुछ बात ये समझ आई है कि अगर आपको प्रोसीड करना है न्यूमेरिकल